all over the world. Thank you so much for being part of this. It's being streamed on Nawaz's page. So Nawaz, thank you for giving us the opportunity of streaming it on your page. Welcome. We're very, very happy to share this conversation with all of you. You can't eat our snacks and you can't hang out with us, but at least you can see this video. So thank you. Also very, very grateful to 24 Frames Digital, our streaming partner, for actually making this live stream possible. One more thing that y'all can't do, those who are on the live stream, don't mind, but we haven't advanced so much to deliver books to you. I mean, it's not Amazon, we can't come through the live stream and deliver, is that you can't buy these books. So Trilogy, our books partners have actually set up a wonderful bookstore. So when you go out and have your snacks afterwards, you can buy Nazia's book, you can buy Rakshanda's book, and have them sign it for you as well. So thank you to Trilogy, our books partner as well. We are so happy that Mithil always comes up and does this for us so beautifully. Now, for the course of the evening, I'm going to first invite Nazia up on stage. She's going to give a small talk for 10 minutes, and then we will have our panel that will talk amongst each other, and then we'll open it up for some questions after that. So first up, Nazia. Nazia Iram is the author of the critically acclaimed Mothering a Muslim, which came out some months ago to rave reviews. The book uncovers rampant bullying and religious segregation in classrooms in our India today. Nazia also runs the workwear brand, The Luxury Label. Presently, she writes on the cross sections of gender, interfaith, and politics, talking about subjects that get left out from mainstream discourses. And, that's exactly what our Culture Lab does as well, which is why we love you so much at the Culture Lab. Nazia, welcome. Please come up and share your thoughts with us. Anyway, yeah. Thank you so much, Parmesh. Thank you so much, everyone who's come here today. A big round of applause for you all. मंटो की बात की मन की बात. दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त. दिल वो है कि फरियाद से लबरेज है हर वक्त. हम वो हैं कि कुछ मुंह से निकलने नहीं देते. I think this lines by Akbar Allahabadi really resonated with me because isn't that how we grew up? क्यों? कितनी बार सुना था बड़े होते हुए? भाई ऐसा मत बोलो, पड़ोसी क्या सोचेंगे? थोड़ा तो कायदे से बोलो, अपने रिलेटिव्स क्या सोचेंगे? घर वाले हैं, समाज का कुछ तरीके होते हैं बोलने के. I think growing up is a training process in conformity. How many of you agree with that? है ना? We're just trained. It's like being grounded in cultural morality. In fact, I'm going to name out the elephant in the room today. When we talk about free speech today, people are being arrested for what they read, for the books they have. How many of you have, following that hashtag, the anti-national bookshelves that you have? Anybody here? Nobody has an anti-national bookshelf? No Karl Marx? No Parmeshwar? So, when I was coming to Mumbai yesterday, I was reading a book by Meena Kandasamy called When I Hit You, and these lines I'd like to share. So she's talking about a conversation with a stranger, a complete stranger. She says, conversations follow the same pattern. An endless back and forth relay of absolute pointlessness. No question demands an honest answer today. A question is asked as an exercise in formal behavior. Questions can be greetings. Questions are placeholders. Questions fill awkward gaps. Questions to suggest an interest that does not exist. Or questions can simply pretend to listen. How many of us have been through that? How many of us fill our conversations with people around us pretending to be interested, pretending to be seeking an honest answer, and actually
we don't have the conversation that we really need to have. We as a nation are so comfortable shoving things under the carpet. Sex, homophobia, Islamophobia. I mean, on that note, yes, yesterday we had a huge victory in the court. Round of applause, everyone. And it was said in the judgment that this is a victory of freedom of speech, that this Article 377 was against freedom of speech and expression. Earlier this year, I wrote a book which said things that people were like, why do you need to say it? Isn't it understood? But who's talking about it? Where? Of course you need to say things that you are not comfortable listening to. अगर आपको लगता है 3-4 साल के बच्चे एक दूसरे को मुसलमान या हिंदू होने पर उनको एतराज़ हो रहा है कि I cannot make friends with a Muslim or cannot eat with a Muslim or cannot drink a sip of water with a Muslim, then of course नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है हमारी ज़िंदगी and हमारी society. If we are not allowed to to love freely, then of course नाकाबिले बर्दाश्त है. And if you don't write about this, if you don't talk about this, then you know what happens? We go into this, we believe there's only one way of looking at the world, conformity. There's only one truth. And I believe every story matters because it gives us a different perspective and a different truth from the one that we believe in. Can we go beyond our echo chambers and listen? Like really listen in? Or things that we need to, as writers, the responsibility would be to write things that जो आपको अपने own गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दे, अपने दिल में झांकने पर मजबूर कर दे, अपने घरों के अंदर झांकने को मजबूर कर दे. क्या आपके घरों में अब आजकल क्या conversations हो रही हैं? We also, do you think what we hear on national television is limited there? आपको लगता है कि जो सब कुछ न्यूज़ में हो रहा है वो सिर्फ टीवी पे होता है? टीवी पे होता है, टीवी वाले कर रहे हैं बस, मीडिया वाले हैं, हम नहीं हैं, not me. Of course it's you, it's your house, it's your home, where these conversations are, even your silence, remember, is conformity. Your silence is an agreement, gives consensus to the larger conversation out there. And when there is one way of looking at things, it actually makes the minority self-censor themselves. Let me give you an example. I'm reading from a book, Mothering a Muslim. A form of self-censorship has crept into our lives. Well, I want my child to be extra careful with jokes at airports, as nothing is a joke if you are a Muslim, says Sana Hamid, founder of a digital payment startup in Mumbai. A Muslim is mostly overconscious at an airport not to say words like bomb or hijack, even by mistake, or even in jest, to avoid drawing unnecessary attention to oneself. Similarly, Muslim parents try to discourage in their children any behavior that might stereotype them. We are acutely aware of prejudices through media and are always on guard. It is like practicing a version of psychological inoculation, exposing our children to biases to protect them and, if needed, prepare them for facing similar things later in life. Today's parenting includes providing children with a script on how to behave and what to do if you're recognized as a Muslim. Sana says that her 8.5-year-old son, Omar, came home from school one day in Mumbai and recounted this conversation with his longtime friend.
The friend says, hey, do you eat beef? Beef खाता है क्या? Types. Omar replies, what? पागल है क्या? Are you mad? Friend, my mother has instructed me not to eat anything from your tiffin. Omar, so what are you fussing about? Simply don't eat my tiffin now. Though Omar had dealt with this lunch break conversation rather smartly, it left Sana scared. What if the other kid believed that Omar did indeed have beef? What if he tattled about it? It is scary, but painfully our reality. Obviously, I had to tell my kid that next time just say, we don't have beef. There is no space for open-ended conversations today. One Eid, Hassan, a 7-year-old in Bengaluru, was asked by his father not to wear the traditional kurta pajama when he went to play downstairs. His father is a senior software engineer and his mother is a banker, and they live in one of the multi-stories dotting the Cambridge layout area. Hassan's father said, थोड़ी देर पहन लो, फिर उतार देना. You don't know, माहौल बड़ा खराब है. So we are not only censoring our thoughts, we are censoring the speech of our children, we are censoring the actions of the children, we are censoring the attire of the children. I gave my daughter a non-conformist name, which does not signify her Muslim identity, her first name. Because as a 4-year-old, I did not want her to hear. And Delhi, it's really bad, but make no mistake, Mumbai is falling well on the heels. Where 4-year-olds say that, I hate you because you're a Muslim. You know, people ask me, what's the worst story out here? I say they're all equally bad. But for me, you know, in looking back, it's not one story. It's the change that we see. So Dr. Waris from Mumbai, who was a principal in one of the prestigious colleges here, she remembers how her child, when, like 40 years back, when he was 5, he would have a Maulana come over and teach him, you know, teach him Quran, Urdu, and universal human values like Musliman झूठ नहीं बोलते, Musliman लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, वगैरह वगैरह. Universal human values, right? So this child took Musalman to be a word that means all these values. So when they had a guest over, he goes up to the guest and says, Moti uncle, आपको पता है मेरे क्लास में सब मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, बस वो अबरार और इरफान नहीं है क्योंकि वो झगड़ा बहुत करते हैं. That is how we grew up. That is the India we know. Or Bhopal said this story of Asma. So when she's, again, late 40s now, so she was 5 at that time, it's like 46, 7 years ago. So she tells me that when she was young and they just moved into a new neighborhood, so she was like out there playing in the open space that they had in front of the house, and a neighbor peeps in and says, "Tum Musalman ho kya?" Asma says, "Tum ho gaye Musalman? Main to Asma hu." Like, how do you like? Tum ho gaye? I mean, what's that? What's Musalman? I could relate to these stories because I have a 4-year-old, और मैंने उसे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी best friend सिख है, और तुम्हारी teacher हिंदू है. I've not categorically put her into these compartments yet. But conversations on the best schools, and I've named top schools across the country in this book, where this kind of conversations are happening, are something like this, similar, kindergarten again, 5, 6, where child says, "Tu Musalman ho kya?" And the Muslim kid replies, "हाँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं beef नहीं खाता." This is what we have done to the young. And make no mistake, it is coming from the kind of conversations we are having, or the kind of conversations we are not countering, the kind of conversations we let happen. You don't need to teach a child this. The parents are shocked. I don't know where my child picked up this beef thing. We don't have that conversation at home. You cannot wipe your hands off that. The children are listening. They're listening to us day in, day out.
The children are only repeating what they hear at 10 p.m. bulletins in the 9 a.m. classrooms. So, for me, freedom of speech and expression would be to call out things as they are. You know, Parmesh had written this. Manto's writing is a mirror to society, and I think at any given time, we need writers who are not afraid to show us our ugly truths and hypocrisies so that we can reflect on them. What is that one writer who makes you think about what's happening around you? How many writers are you tuning out? How many people are you not listening to because they do not conform to your idea of politics, society, everything? A larger, I think that for me the biggest victory when you spell things out is not that you have spoken these things. It's about empowering that person who did not feel empowered enough to speak out against this. Because if I do it, tomorrow a child will be able to say that, I'm not alone in this. A parent will be able to say that, I'm not playing a victim card or a minority card here. So, recently we had this hashtag, talk to a Muslim. So I'm talking about my realities and my version of freedom of speech, of course, was something that happened very recently, was talk to a Muslim hashtag. I don't know how many of you are on Twitter and how many of you are familiar with this, which had a lot of derision, like, what is this, talk to a Muslim? You don't speak things like that. Why? But you don't do Hindu, Muslim, Sikh, Isai all the time on your television too. If that is happening, then let's name it. Let's name everything around us that we are not comfortable naming. Let's name all those things that we are not comfortable talking about, because only through acknowledging it will we address it. So, as Manto said, नंगे मुशायरों को नंगी आँखों से देखकर, नंगी मुशायरे को, how do you pronounce that? नंगी मुशायरों को नंगी आँखों से देखकर, उतनी ही नंगेपन से पेश करने वाले को ही मंटो कहते हैं. So let's now do मंटो की बात. Thank you for that, Nazia. It's my absolute pleasure to introduce this panel, and as I call out your name and introduce you, please join Nazia on stage. First up, we have Dr. Rakshanda Jalil, who is a writer, critic, and literary historian. She has published over 25 books, written over 50 academic papers and essays. She runs an organization called Hindustani Awaz, devoted to the popularization of Hindu, Urdu literature and culture. She also writes regularly for newspapers and magazines in India. And we are so glad that the Trilogy bookstore outside has curated many, many copies of her books. So I know some of you have been looking for this. Please buy the books, get them signed by Rakshanda Jalil, who is right here. But this will be after our panel. For now, Rakshanda, please can I invite you on stage. Welcome. Thank you. Next, it's my absolute pleasure to call Rasika Dugal. Rasika has starred in Bollywood films like Shay, Kissa, and Chutney. If you haven't seen Kissa, seriously, you really need to see it. Loved it. As well as plays like Vikram Kapadia's Bombay Talkies. She's acted in and hosted television shows and done so much more. And in this film, she plays Manto's wife, Safia. Rasika, welcome. Welcome to the Culture Lab. And last but not the least, it's my pleasure to call Nawazuddin Siddiqui up on stage. Nawazuddin doesn't need an introduction, but I'll give it to you anyway. He's acted in so many films. Black Friday, Peeply Live, Kahani, Gangs of Wasepur. Also these beautiful small ones which I've loved. I don't know कि आपने देखी है Haram Khor, Miss Lovely. I mean, these are ones which I really love as well. Of course, now everyone is talking about Ganesh Gaitonde from Sacred Games. But
only for a few more days because September 21st के बाद people will be saying Manto, Manto, Manto. So all yours, Nazia. Please enjoy this conversation. नवाज, क्या आपको लगता है कि कभी-कभी मंटो को लगता था कि वो ही खुदा है? कभी कभी मंटो को क्या क्या लगता था? कि वो ही खुदा है? वही खुदा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी है कि जब वो कब्र के पास जा रहे हैं तो अपनी बहन को उनको बोलते हैं कि यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, वो मानो मनु मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। तो ऑफकोर्स उनको लगता था। क्योंकि मंटो की जिंदगी में सबके सारे कैरेक्टर में सबसे इंटरेस्टिंग मंटो खुद ही रहे हैं। मैं तो कहूँगी सफिया। तो इज देयर क्योंकि वो बहुत एरोगेंट भी थे, while at the same time वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की जिंदगियों से जो एम्पैथिक एक टच था उनका, उनकी स्टोरीज में लोगों की जिंदगी को देखना, at the same time आपको लगता है कि दो अलग लोग थे एक साथ मंटो के अंदर? एरोगेंसी तो थी उनके अंदर। आई थिंक वो इसलिए भी थी क्योंकि मैं भी शायद मतलब अगर एरोगेंसी किसी को नुकसान नहीं कर रही है तो मैं भी शायद इसलिए कि वो अपने परफेक्शन था उनके अपने काम में और जो माहौल था उस वक्त वो देख रहे थे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा सा होता है। आई नो यार, ठीक है, मुझे मालूम है। वो मैं भी शायद बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीज़ों के बाद एक आ जाता है। और जब आप अपने आसपास देखते हैं कि शायद इतना ऑब्जर्वेशन या इतनी जो जितना मैं एक आदमी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मंटो हमेशा आम लोगों को इतना जान चुके थे, तो मैं भी शायद एक आफ्टर लॉन्ग टाइम एक उनके पास ही एरोगेंसी आ गई हो कि मैं अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे पास में बैठे उससे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ मैं भी शायद इस बात की एरोगेंसी थी उनको। So arrogance is healthy. Arrogance is healthy. बहुत ही मतलब आपने बोला कि एरोगेंस अच्छा है एक तरीके से, तो आपकी अपनी जिंदगी में ऐसा क्या है कि आपको लगता ऐसा आपको क्या दिखा कि आपको लगता है कि एरोगेंस इज कैन बी हेल्दी आल्सो? एरोगेंस की क्या वो भी है, मतलब समझा? सो इट्स लाइक जैसे मंदू ने जो आपने बोला ना बहुत परफेक्शन एक आ गया, आप भी एक मेथड एक्टर हैं, आप मंटो की आप उसमें इतनी खूबी से हैं कि हमें एक्चुअली वो देखते टाइम लग नहीं रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ मेनी ऑफ यू एग्री इट लुक्स लाइक मंटो हिमसेल्फ इज ब्रॉट टू लाइफ, एकदम वो जिंदा हो गए हमारे लिए। तो ये जो परफेक्शन है और ये एकदम उस कैरेक्टर से अलग है जो हमने लास्ट आपको देखा था सैक्रेड गेम्स में। मैं भी मुझे लगता है कि वो जैसे आप कह रही हैं कि एक थोड़ी सी है एरोगेंसी होती है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है मुझ में तो है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं कोई बहुत ही वो नहीं हूँ, मुझ में है। और वो इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरे पास स्पेस होता है, मेहनत करने का वक्त होता है किसी भी कैरेक्टर के ऊपर। और मेहनत तो सब लोग करते हैं, मतलब कहते हैं ना हमारे यहाँ गधा भी करता है मेहनत, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत सीख के, बाकायदा ट्रेंड होके अपने फील्ड में, उसके बाद जब किसी कैरेक्टर पे मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है मुझे। तो वो जब मुझे मालूम है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में किस तरह के एक्टर्स हैं जिनको जो सिर्फ फेम चाहते हैं किसी भी हालत में, उनको कैसे भी चाहिए फेम, भले उसके लिए वो प्रिपेयर उन्होंने अपने आप को किया है या नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब हम लोग ट्रेंड होके आते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करके आते हैं, तो एरोगेंसी क्यों ना हो? बिल्कुल क्यों ना हो। मुझे अपने हार्डवर्क पे एरोगेंसी है कि मैं इस दुनिया में जितने भी एक्टर्स सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं मैं। मुझे इस चीज पे बहुत कॉन्फिडेंस है और एरोगेंट भी हूं उस चीज को लेकर मैं। तो मे भी मंटो का भी एक यही कुछ हो, आई डोंट नो। But he was a prolific writer. So, रसिका, मंटो कहा जाता है कि आज भी हमारे साथ हैं। अगर वो सचमुच में होते, in real, आज आपको क्या लगता है कौन सा नया खिताब मिलता उनको? Like, I'll give you some options. Urban Naxal, Libtard, Secular, Prostitute, he was a journalist also, Anti-National, Feminazi,
Anything else that I'm missing? मुझे लगता है सारे ही खिताब मिलते हैं और ये भी कम पड़ जाते हैं मंटो के लिए आज के ज़माने में क्या वो कोई नए खिताब लाते हैं अपने लिए? क्या बोलते हैं हैशटैग मंटोयत हैशटैग पता नहीं और भी क्या होता लेकिन लोग इनको ये टैग ज़रूर देते हैं आज के ज़माने में बिकॉज आई थिंक इवन एट दैट टाइम he was saying things which had a lot of he got a lot of backlash for it in society and it wasn't easy for him or his family or for Safiya and their daughters to survive through the 6 cases that he had to fight for when his stories were tried for obscenity and I think if that's what I keep saying that unfortunately Manto is more relevant today than ever and I say that unfortunately because I wish we could take our freedom of speech and expression for granted but we can't and therefore we need to talk about people who stood for that and fought for that and while I am happy that Manto is being revived so to say because I have been a very avid reader of Manto's works but at the same time I feel that the idea that that he's more relevant today than ever because of the threat that we are facing against freedom of speech and expression, that is really hurtful to me personally. So if Manto was writing today, I'm sure he would have written against all the threats to freedom of speech and expression and he would have got a lot of backlash and he would have been tagged with all this and more and God knows what else would have happened. It's a scary thought. ऐसी कोई चीज़ जो मंटो की लाइफ के बारे में जो आपको नहीं पता थी आप लोग शॉक हो गए थे कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया? मंटो की हर चीज़ शॉकिंग ही थी एक्चुअली जो भी वो करते थे बट आई थिंक फॉर मी द रेवलेशन अबाउट मंटो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म was I had always known Manto the writer but never Manto the person and I think Nandita's script has very beautifully brought that in with his family life and talking about his wife and daughters and what the entire family went through and what that marriage went through with all that with the partition of the country and the cases against him. नवाज आपके लिए क्या शॉकिंग था? मुझे दो चीज़ें बड़ी शॉकिंग की मंटो की एक तो ये था कि वो इतना एक बहुत ही क्रिएटिव राइटर थे है ना एट द सेम टाइम फैमिली मैन भी थे ये कैसे हो सकता है ठीक है दूसरा ये था कि वो भीड़ में भी जैसे अभी कहीं बाजार में बैठे हैं उसके बाद भी वो कहानी लिख लेते थे तो ये एक मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलोन स्पेस चाहिए थोड़ा फोकस करने के लिए कंसंट्रेट करने के लिए कैरेक्टर पे थोड़ा मैं अलग रहना चाहता हूँ ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि वो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं और वो कहीं भी बैठ के लिख लेते थे तो ये दो चीज़ें मेरे लिए शॉकिंग थी एक क्रिएटिव पर्सन जो हमेशा मतलब सिर्फ क्रिएटिविटी की बात करता है और वो इतना अच्छा फैमिली वो अच्छी वाइफ को भी बहुत अच्छे से प्यार कर सकता है बच्चों को भी संभाल सकता है पूरे परिवार को मतलब बहुत अच्छे से रख सकता है कैसे हो सकता है मैं ये जानना चाहता हूँ और बीवी के कपड़े आयन करते थे प्रेस भी मैंने करते जब थे, हम वो कान हर गए चीज़- थे तो मैंने नवाज को बोला आप भी मेरी साड़ी आयन कर दीजिए बट वो माने नहीं Okay, Apa, you know, आजकल the progressives, you have written a lot on the progressive writer movement, but do you think they would also have been renamed in today's time, the Tukre Tukre gang and the Azadi gang, and you know, keeping keeping the India's diversity as a larger platform, keeping that in mind, do you think there are limits to this freedom of speech that we are, and how is it different from Manto's time in today's time, this freedom of speech, because he talked in the context of partition. Today's times are different. We are अब बहुत सी चीज़ें पूछ रही हैं हम देखते हैं मैं कितना याद रख पाती हूँ थोड़ा सा मुख्तसरन बताना चाहूँगी कि जिसका इन्होंने शुरू में जिक्र किया प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ये एक बहुत पावरफुल लिटरेरी ग्रुपिंग थी हम बॉम्बे प्रोग्रेसिव्स को तो जानते हैं जो एक पैरेलल मूवमेंट था आर्ट में लेकिन यही आपका शहर बॉम्बे एक हब था एक सेंटर था एक मरकज़ था एक बहुत बड़े लिटरेरी मूवमेंट का जिसका नाम प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट कहा जाता है और 40s से एक हाई नून होता है इस मूवमेंट का
उस वक्त का बड़े से बड़ा उर्दू हिंदी का लिखने वाला आपके शहर बॉम्बे में आता है, फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से काम करता है, स्पॉट बॉय से लेके लिरिक्स लिखने से लेके स्क्रिप्ट लिखने से लेके अलग अलग तरह के काम करता है। आपका जो सवाल था है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट को आज क्या कहा जाए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ हो सकता है, वह है गद्दार। आजकल हम इतनी आसानी से लफ्ज़ फेंक रहे हैं, पब्लिक डिस्कोर्स में लफ्ज़ ऐसे उछाले जाते हैं जैसे गेंदे, गद्दार, एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल, एंटी ये एंटी वो, ये सब चीज़ें कोई भी शख्स जो भीड़ से खड़ा अलग होके आपको आपकी निशानदेही करता है किसी तरफ, वो फ़ौरन गद्दार हो जाता है। और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने तो अपने लिए एजेंडा ही ये रखा था कि एक और सोच को की तरफ हम लोगों का ध्यान दें। तो इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं मालूम देती कि ज़रूर अगर प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी कहना ज़रूरी है, progressive writers movement has not died, it has not disappeared, it has just shrunk in space. Of course there are progressive writers, there'll always be. इसमत चुगताई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, प्रोग्रेसिविज्म जिंदा रहेगा। तो आप बताइए, क्या बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाना ख़त्म कर दिया है? नहीं, और ना ही करेगी। तो प्रोग्रेसिविज्म किसी ना किसी शक्ल में हमेशा ही जिंदा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका दायरा इन हालात में आज के हिंदुस्तान में कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि तीसरा सवाल शायद नाज़िया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुताल्लिक़ था। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक बड़ी अजीब जीव जंतु है। जिन लोगों के पास फ़िल्टर्स होने चाहिए उनके पास फ़िल्टर्स नहीं हैं। यानी फॉर लव वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी sort of politically correct. The Article 377 was struck down very recently. But till recently, we had to be very politically correct and wary about what we are saying. So when it comes to love, to goodness, to liberalism, to secularism, we want to be very politically correct, very wary. But when it comes to the nonsense in this world, when it comes to communalism, when it comes to hatred, when it comes to toxic things, when it comes to bigotry, we don't have a filter. There we say we have the freedom of speech to say what we want. So it worries me, this binary that I see. Are we confusing freedom of speech with freedom for hatred? I think we are confusing speech. freedom of speech with freedom to give offense. Writers में जहाँ नहीं होना चाहिए ये political correctness, ख़ास तौर से मेरा काम चूँकि उर्दू और हिंदी के राइटर्स में है, मैं जब मंटो की जनरेशन के राइटर्स को आज की जनरेशन के राइटर्स से कंपेयर करती हूँ, उर्दू और हिंदी की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, तो मुझे एक बहुत करेक्टनेस नज़र आती है, बहुत मोहतात होना नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बात तो करना चाहते हैं जिसको आपने शुरू में नाज़िया कहा, द एलिफेंट इन द रूम, लेकिन एल्यूजन के ज़रिए, मिथ के ज़रिए, सिंबल के ज़रिए, इमेज के ज़रिए इशारा करेंगे कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन मंटो ने या मंटो की पूरी जनरेशन ने, कृष्ण चंद्र ने, बेदी ने, इस्मत चुगताई ने, भीष्म साहनी की तमस पढ़िए, क्या आज लिख सकता है कोई तमस? हम तो इतना डर गए हैं कि हम हिंदू मुसलमान लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करते, हम कहते हैं द अदर कम्युनिटी, राइट? It started with the media saying alleged, it started with the media saying the other community. But increasingly, even our writers are being very careful, and that to my mind is worrying. जिन लोगों को careful नहीं होना चाहिए, वो मुझे लगता है careful हो रहे हैं, और जिनको बहुत ज़रूरत है careful होने की, वो बगैर filter के बात कर रहे हैं। Trolls जो हैं, social media पे जो है, किसी का कोई filter नहीं है, किसी को कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो जहाँ ज़रूरत है उन curbs की, वहाँ हमारे पास checks and balances नहीं है। नवाज, sacred games normal television पे कभी आ नहीं पाता for obvious censorship reasons. लेकिन आज के ज़माने में इतना accessible हो गया है because technology ने accessible कर दिया ऐसी चीज़ें जो normally censor हो जाएंगी। आपको लगता है इससे change हो रही है सिनेमा, आपसे इससे change हो रही है सिनेमा के अंदर freedom of speech? इस तरह के शोज से हैं? इस तरह के टेक्नोलॉजी से, इस तरह की टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हाँ। आप ऐसे शोज आप बना सकते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ऑडियंस मिलेगी, तो
कितना आप, क्योंकि आपके आपकी लाइफ में आपने कितना डिफरेंस देखा ये? वही जैसे आपने बताया कि अगर सेंसर होता तो ये शायद शो कभी बन ना पाता। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जब पाबंदी आ जाती हैं तो क्रिएटिविटी भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब सीन करते हैं तो सीन करते वक्त क्या होता है कि हम लोग अभी अवेयर होने लगे कि जबान से कुछ ऐसा स्लिप ना हो जाए कुछ। इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं हम लोग तो थोड़ा ध्यान, अब वो इम्प्रोवाइजेशन हो ही नहीं सकता जहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए, वो तो कैलकुलेशन हो गई एक्टिंग में, यू नो। तो उस जहाँ आपने सोचना शुरू कर दिया है कि यार ये चीज़ों से थोड़ा बचना है, ये थोड़ा सेंसर हो जाएगा, ये थोड़ा अगर लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी क्या कहेगी, वो लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचने लगे तो फिर वो बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाता है। मुझे याद है जब हम लोग कई साल पहले जब दिल्ली में थे, जब थिएटर करते थे तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम तक जाते थे किसी भी सीन के। अब वो चीज़ बहुत ही अभी इम्पॉसिबल है। थैंक्स टू मतलब इस शो के जरिए, इस शो सिर्फ ये नहीं कि हम उसमें सिर्फ गालियां दे रहे हैं या वट जो भी इस तरह की चीज़, बट एज एन एक्टर मुझे एक कैरेक्टर के डीप में जाने का मौका मिला। तो अनुराग ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल कर रखी थी। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू, नो प्रॉब्लम। और जो जो लैंग्वेज हमने यूज़ की वो नुआंसेस हैं, एक कैरेक्टर की मेंटालिटी को इन्हांस करते हैं हम लोग। तो ये था। तो क्या अगर मंटो वेब सीरीज होती, क्या वो डिफरेंट होती अगर सेंसर बोर्ड के थ्रू उसको नहीं बिल्कुल जाना बिल्कुल होता? 100% क्या डिफरेंट डिफरेंस होता? बहुत डिफरेंस होता है। आई थिंक उस केस में हम लोग दूसरे तरीके से सोचते। मंटो की जो राइटिंग थी उस तरीके से सोचते, क्योंकि बहुत ही बेबाक थी, बहुत ही रियल थी, बहुत ही रियल राइटिंग है उनकी, और उसी तरीके से भी सोचते भी हम लोग, मंटो के माइंड को सोचते। लेकिन नवाज साहब ये भी याद रखिएगा कि मंटो ने 7 कलेक्शंस लिखे थे रेडियो प्लेस के। जब वो ऑल इंडिया रेडियो में लिखते थे तो जो वो रेडियो के लिए लिखते थे वो बिल्कुल दूसरे किस्म की चीज़ थी। उसमें सौगंधी जैसे कैरेक्टर्स फिर नहीं थे। किस तरह? इस तरह से कि जो रेडियो था उस वक्त एक बहुत बड़ा मीडियम था, और मंटो ने जो पहली और आखिरी दफ़ा मुलाजमत की, यानी फुल टाइम जॉब, डे जॉब जिसको कहते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो में की, दिल्ली में रह के। और रेडियो के लिए जब वो प्लेस लिखते थे तो वो उनकी कहानियों से बिल्कुल अलग थे। तो मेरे ख्याल से मीडियम की भी कुछ शायद मीडियम रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल खोल दो है या बट जो भी इस तरह की स्टोरीज हैं, आई थिंक बिकॉज हम अब चूंकि खोल दो भी हमारी फिल्म की एक स्टोरी है ना। और ठंडा गोश्त को अगर हम आज के उसमें जो उनकी स्टोरी को अगर आज हम पिक्चराइज करें तो मे भी शायद हम वहाँ उस डीप में नहीं जा सकते। और मंटो ठंडा गोश्त सिर्फ प्रिंट में लिख सकते थे। मंटो सौगंधी जैसा कैरेक्टर या खोल दो जैसी या काली शलवार की जो सुल्ताना है, ऐसे कैरेक्टर्स शायद रेडियो के लिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो एक मीडियम का एक फर्क। Rasika, we just talked about how digital has made trolls more accessible to you. As a public figure, do you find yourself, and you are on Instagram, you're on Twitter, do you find yourself censoring yourself a lot? No, I'm not famous enough for that. So, Honestly, तो I हमें don't have to नवाज पे think आना so much पड़ेगा। about what I नवाज, write. आप कितना ज़्यादा सेंसर करते हैं अपने आप को जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं? हम तो बहुत करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा। कोई वाकया बताइए। मैं तो अपना थॉट लिख ही नहीं सकता हूँ। मैं तो पूरा शट डाउन कर रखा है अब तो, इसीलिए सोशल मीडिया पे जितना भी प्रमोशन का होता है सारा वही, भाई ये पिक्चर आ रही है उस टाइम पे रिलीज है, ये इमेजेस है, ये वो सब निकालो इसको, ऐसे है। अपना तो थॉट मैं लिख ही नहीं सकता। अपना थॉट तो मैं सिर्फ अपने रूम में, और मेरा ऑफिस में एक रूम है उसमें अपने दोस्त के साथ तक शेयर कर सकता हूँ बस। as but as a celeb who is also a Muslim, आपको लगता है कि politically आप अपने आप को सेंसर करते हैं? ऑफ कोर्स पॉलिटिकली अपने आप को सेंसर करना पड़ता है, और दूसरी बात ये सोसाइटी की वजह से भी। सोसाइटी कहते हैं ना कि वो मीन मेख बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ कि आज से कुछ साल पहले तो नहीं था, बट अब ज़्यादा कुछ हो गया है। ज़रा सा कुछ लाइक मे बी शायद ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा मंटो की बात करते हैं। हाँ वही। मंटो ये तो अपनी बाहर लाइए। Okay, I'll leave it at that.
कुछ तर्ज सितम भी था और कुछ अंदाज ए वफा भी. But remembering Manto is a complete political act today. So tell us about why he was called a free speech hero. Why is he termed as a hero of free speech? Apa. देखिए हम कुछ हीरोज़ को याद रखते हैं, बाकी हीरोज़ को भूल जाते हैं. मंटो एक पूरी एक कबीले का एक हिस्सा थे, एक जनरेशन का एक हिस्सा थी, जहाँ उस तरह से बोलना, बेबाकी से बोलना वाज ऑल राइट. मेरे ख्याल से वो राइटर्स इतने पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे. जिस तरह से मंटो बात कर रहे हैं, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, उसी तरह से इस्मत भी बात कर रही हैं, उसी तरह से बेदी भी बात कर रहे हैं, उसी तरह से कृष्ण चंद्र भी बात कर रहे हैं. शायद वो वक्त ऐसा था, वो वक्त आप कह सकते थे. क्यों कह सकते थे, इस पे जरा सोचिए. एनिमी वाज आउटसाइड, द एनिमी वाज नॉट विद इन. द मंटो जनरेशन टुक अ फॉर्मुलैक अप्रोच टू लिटरेचर. हम सब ठीक हैं, ये अंग्रेज आए, इन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया, दुश्मन ये हैं, और हम इसीलिए कोई उनको झिझक नहीं थी मुसलमान या हिंदू लफ्ज कहने में. मंटो के हमाम में सब नंगे थे, और वो इसलिए थे कि मंटो का ये कहना था ये हालात किसी और ने बनाए हैं. आज हमारे पास वो फिग लीफ नहीं है. हम नहीं कह सकते कि असल में हम तो सब बहुत ठीक लोग हैं, ये किसी और ने आके गड़बड़ कर दी है. वी कैन नॉट से दैट. ये मसला है सारा. तो इन 70 सालों में, एंड इट्स बहुत ट्रैजिक एंड इट्स बहुत शॉकिंग कि आपका हैशटैग है मंटो नाउ. ऑफ कोर्स अ गुड राइटर शुड रिमेन रेलेवेंट फॉर सेंचुरीज. आई मीन हम आज भी होमर और इलियाड पढ़ते हैं, ओडिसी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एक सच्चाई है जो अज़ल से चली आ रही है और चलती रहेगी. लेकिन इस हैशटैग मंटो नाउ से मुझे अफसोस भी होता है, इसलिए कि मंटो ने जिस तरफ हमारा ध्यान दिलाया, जिस किस्म की बर्बरता की तरफ हमारा ध्यान दिलाया, वो आज भी है. जो मंटो की कहानियाँ हैं, अगर आप वो पढ़ें और फिर गुजरात में जो हुआ आप वो पढ़ें, तो आपको हैरत होगी कि 70 साल के बाद वही सब लिखा जा रहा है. हिंदी के एक लिखने वाले हैं असगर वजाहत, उन्होंने एक मंटो टाइप की हाइकू किस्म की छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं. उसका नाम है शाह आलम कैंप की रूहें. आप उसको पढ़िए और बताइए कि क्या ये मंटो लिख रहे हैं या ये आज का कोई लिखने वाला है. तो ये अफसोस की भी बात है और ये शॉकिंग, ट्रैजिक, जो कहना चाहें, दोनों ही है. नवाज, आपने हाल में अपनी बायोग्राफी निकाली थी जिसमें विच वाज अ टेल ऑल. तो क्या मंटो का कुछ उसमें रोल था? चूंकि उस वक्त में मंटो में के रोल में था मैं, मंटो तो मैंने सोचा मंटो करने के लिए मुझे हमें लगा कि बिल्कुल सच हो जाना चाहिए. अगर लाइफ में बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाऊंगा तो ही मंटो का रोल कर सकता हूँ, और मैं हो गया था एक बार, यू नो. उसी बीच में एक हमारी को राइटर थी, वो लिख रही थी बुक को, तो मैंने जितना भी मेरे दिमाग में था सारा मैंने सच बोलता चला गया मैं. और वो लिख के अपना निकल ली सैन फ्रांसिस्को चली गई वो. वहाँ से उसने अपना बुक निकाल दी, और उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 5 पेजेस में थी. मेरे अपने जो रिलेशनशिप हुई थी वो 5 पेजेस में, बाकी उसके अच्छा वो मीडिया में पहले चली गई, बाद में हमारे पास है. हम करेक्शन करने का हमारे पास टाइम नहीं मिला यू नो. और उन 5 पेजेस पे इतना बड़ा हंगामा हो गया. ऑफकोर्स मेरी भी गलती थी, मैंने 2 नाम ले दिए थे, वो ठीक नहीं था. लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मेरे सिर्फ 5 पेजेस पे पूरा हंगामा कर दिया, बाकी जो इतने सारी चीज़ें थी उसको किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा क्या, आई डोंट नो. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने विड्रॉ कर लिया और माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस होने वाले थे, तो मैं डर गया. और अगली बार जब लिखूंगा तो पूरी किताब लिखूंगा, लेकिन झूठ लिखूंगा सब. मैं सोच रही हूँ कि मंटो इससे खुश होते कि सैड होते. आपको सैड होंगे. लेकिन पहले आप इंस्पायर हुए थे. पहले खुश हुए थे, अब इसके बाद तो बहुत ही वो सोचेंगे कौन बड़ा अफसाना निगार है, मैं कि नवाज. अच्छा, तो मंटो की जब भी पढ़ते हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मंटो द राइटर. बट रसिका, हमें सफिया के बारे में कुछ नहीं पता था अभी तक, एंड द मूवी इज गोइंग टू टेल अस अ लॉट अबाउट हर. तो डू यू थिंक कि आपकी जो आज की सेंसिबिलिटीज हैं,
आपको उनको शेड करना पड़ा to become into her role, or do you think she was as relevant today? You're right, there isn't much written about Safia, and there is a lot written about Manto and written by Manto. But Nandita had spent a lot of time with Safia and Manto's daughters in Pakistan and with Safia's sister Zakia. And a lot of anecdotal information from the family, very sweet, beautiful stories have found their way into the script, which I think was the most exciting thing for me when I read the script, and hopefully it will be for you when you watch the film. I think when we play characters, we have to be very careful that we do not look at them with any kind of judgment, whether and not inflict our own politics onto a character. I mean, वो तो आ ही जाता है. I'll be lying if I say कि you can play a character which is completely against your politics, but so you can't be judging the politics of your of the role that you are playing. You can't think that, oh, I want her to be this way because that's what I want women to be, or that's how I want myself to be. You can't be judging the character that you're playing. You just have to understand that person, whether you agree with their politics or not. So as an actor, you have to leave your intellectual ideas behind and respond very instinctively and emotionally to the situation that you are placed in. I had a lot of worries and concerns, which I tried to keep away. And if I believe that if a script is well written and a character is well nuanced and you play it with integrity, it will not, it will resonate with people, and people will understand the complexity of that person rather than slot them in any category. And yeah, you were saying something. आज सफिया हमें क्या सिखा सकती हैं? आज सफिया हमें ये सिखा सकती है that there is a lot of strength in silence. There is a lot of courage in silence. There is a lot of strength in being a caregiver. There is a lot of strength. I don't look at those roles as weaknesses. There is a lot of strength in being able to be vulnerable and receptive. I think that is what Safia would teach us. आज के ज़माने में क्या मंटो चुप बैठते? जी नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बैठते. अभी जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि अब आज के ज़माने में बहुत मंटो हैं जिनकी आवाज़ की वजह से पूरे वर्ल्ड में हैं, जिनकी वजह से दुनिया अभी भी रुकी हुई है. नहीं तो अगर मंटोयत ख़त्म हो जाए, मंटो ख़त्म हो जाए तो फिर तो सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा. लेकिन हैं लोग ऐसे जो बोल रहे हैं. रक्षंदा आपा, मंटो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के पार्ट थे शुरू में, बाद में वो उसी को उन्होंने ही उनको हेल्प नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, एंड मंटो वाज काइंड हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट. तो वाज इट हिज इंडिविजुअलिटी दैट मेड हिम stand all alone, and is it still the case today कि individuality will make you all alone? देखिए, शुरू की जो मंटो की कहानियाँ थीं, जैसे कि नया क़ानून या 1919 का एक दिन, ये बिल्कुल एक तरह की टेक्स्ट बुक प्रोग्रेसिव स्टोरीज़ थी. तो जो मंटो का शुरू का ओवर है, मिड 30s से मिड 40s तक का, जो अर्ली 40s तक का जो ओवर है, उसमें मंटो इज़ अ पोस्टर बॉय फॉर प्रोग्रेसिविज्म. यानी मंटो की हर नई कहानी को एंथोलॉजाइज किया जा रहा है उन जर्नल्स में, उन अखबारों में जो प्रोग्रेसिव्स एडिट कर रहे हैं, और प्रोग्रेसिव बहुत खुश हैं उस किस्म की कहानियों से. फ़र्क आने लगता है, एक कहानी छपती है बू, जो एक घाटन लड़की के बारे में है. बू से प्रोग्रेसिव्स को एतराज़ होने लगता है कि व्हाट इज़ दिस अनहेल्दी ऑब्सेशन विद सेक्सुअल मैटर्स. प्रोग्रेसिव्स चाहते हैं कि सेहतमंद अदब लिखा जाए. सेहतमंद अदब से उनका मतलब ये है कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में, बल्कि डिक्टाट के तौर पे ये एक ऑर्डर भी दिया गया. इसमत से कहा गया, मंटो से कहा गया कि देखिए ये सब तो बहुत हो गया, जिस किस्म की कहानियाँ आप लोग लिख रहे हैं, अब आप लिखिए फैक्ट्री वर्कर्स पे, अब आप लिखिए खेत में काम करने वाले मजदूरों पे.
तो बेदी ने कहा कि भाई मैं तो इस टाइप के लोगों को नहीं जानता, मैं पोस्टर क्लर्क्स को जानता हूँ क्योंकि एक ज़माने में मैं था, मैं उस पर लिख सकता हूँ और चीज़ों पे नहीं लिख सकता। मंटो इज़ अ कम्प्लीटली कॉस्मोपॉलिटन पर्सन, वो शहरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, वो शहर में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं, भले ही वो डिस्प्लेस लेबर हों, यानी वो माइग्रेंट लोग जो चौल में आके रह रहे हैं, लेकिन मंटो गांव देहात खेत के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसमत भी बेगमाती ज़बान में शरीफ ख़ानदानों में क्या इंट्रीग्स चल रही हैं उसके बारे में लिख सकती हैं। शी कैन मेक अ लार्जर पॉइंट about society, about the human condition, but her stories are based in those माहौल। उन माहौल से निकाल के वो नहीं लिख सकते नई किस्म की कहानियाँ। मंटो ने भी यही कहा कि भाई मैं आपके कहने पे आपकी समझ की कहानियाँ नहीं लिख सकता हूँ। नवाज साहब, आपने एरोगेंस का शुरू में जिक्र किया था, मेरे ख्याल से एरोगेंस तो है ही मंटो में, जो कि किसी भी आर्टिस्ट में होनी चाहिए या होती है जिसको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा होता है। मंटो का मसला ये है कि एरोगेंस के साथ जुड़ जाती है उनकी एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी, यानी वो एक टीम प्लेयर नहीं है। और उस वक्त का जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है वो आपसे कोहेशन चाहता है, वो चाहता है कि आप वही करें जो हम सब लोग कर रहे हैं। मंटो वो ही इज़ अनेबल, आई थिंक वो शायद बाय टेम्परामेंट वो है नहीं इस किस्म के कि उनसे कहा जाए कि तुम इस मौजू पे लिखो। उस वक्त का जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर है उसमें एक टॉपिकैलिटी है, वो मौजूगो अदब है, वो ऐसा अदब है जो नेवल अपराइजिंग होती है ऑफ द कोस्ट ऑफ बॉम्बे, खटाक से कहानियाँ लिख दी जाती हैं उस पर। मंटो उस किस्म का राइटर नहीं है। मंटो सिर्फ उन चीज़ों पे लिखेगा जो उसको समझ में आती है, उससे वो एक पॉइंट ज़रूर बड़ा बनाएगा, लेकिन ही कैनॉट डू कमांड परफॉर्मेंसेस। तो मसला सारा ये है कि मंटो की इंडिविजुअलिटी, मंटो की आप उसको एरोगेंस कहना चाहिए, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और एक स्टेज आता है जो मंटो मार्जिनलाइज होने लगते हैं। वही प्रोग्रेसिव्स जो कल तक कह रहे थे कि मंटो इज़ अ पोस्टर बॉय फॉर प्रोग्रेसिविज्म, अब वो मंटो से को अलग करने लगे हैं, हाशिए पे रख रहे हैं मंटो को। और इससे मंटो जो कि ना टीम प्लेयर हैं लेकिन चाहते भी हैं कि उनको बुलाया जाए, उनकी उनकी आवभगत हो, वो भी नहीं हो रही है। So it's a very complicated bag of emotions here. There is no one reason. I think the progressives and Manto have a increasing distance from the 40s onwards. और ये distance बढ़ता ही जाता है, फिर वो पाकिस्तान चले जाते हैं, वो एक और खाई बन जाती है, तो हालात बेहतर कभी नहीं होते। There's a very beautiful scene in the film which is Manto, Rajinder Singh Bedi, Ismat Chugtai, Shahid Latif and Kishan Chandar at one table in an Irani cafe. So They did meet in the early days. By the mid 40s they are meeting. और ये याद रखिए कि ये बॉम्बे वो है, इट्स लाइक अ ब्लूम्सबरी इन बॉम्बे किस्म का माहौल है यहाँ पे। लोग पिकनिकों पे जाते हैं, हैंगिंग गार्डन्स में पिकनिक का एक बहुत अच्छी तस्वीर है, लोग सेमिनार्स में भी जा रहे हैं तो सब बीवी बच्चे समेत जा रहे हैं। इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली, इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड पिकनिक। Manto in the early days is part of it, but then the distance is creeping. So Nawaz, before I close, हमें वो डायलॉग आप याद दिलाएंगे क्या था वो ज़बाना नाकाबिले बर्दाश्त वाला? एक तो वही है कि ये मैं दर्जी नहीं हूँ, मेरा काम समाज को कपड़े पहनाना नहीं। ज़रा हम ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। ये था वो। आपके हिसाब से एक स्पीच हो तो मैंने कई जगह सुना दी, अब क्या यहाँ पे तो प्लीज वी आर ऑल इयर्स। सुनाऊं क्या? यस प्लीज। एक स्पीच है जो हमारी इसमें भी है, जब ये वहाँ पे ये प्रोमो में भी है, उसमें छोटा सा पार्ट है, तो वो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं अपना मुल्क किसे कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन नाच के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सब से मार खा लूँगा और उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं।
क्लोजिंग क्वेश्चन नवाज, आपके हिसाब से आज के ज़माने में इस वक्त सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त क्या है? आप मुझसे ही ये पूछ रही हैं कि इससे भी पूछ लीजिए कुछ। ये मंटो जमाना पास ही नहीं करते। नाकाबिले बर्दाश्त है। मंटो ने कह दिया था, अब हम क्या कहें। Okay, Parmesh? Shall we open it to questions? Very carefully, we are going to take a couple of questions together, and then we will have the panel to ask them. You've already asked. I want to give new people. Have you asked a question ever in your life before? Okay. So, it's too far behind. I don't know. Okay. One here. Kim, I'll come back. One, there's a gentleman in the turban behind. So, can someone take a second mic and go all the way behind? Someone from this side, maybe. Everyone, your hands are raising because I look there only, okay? Okay, here. So we'll just take these 3 questions for now. We'll take them together, and then maybe we'll take some more. Okay? Who was first? हाँ. सॉरी सर, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने अपने एक्टिंग प्रोसेस में बात किया है कि जब आप कुछ कैरेक्टर से देते हैं तो कैरेक्टर भी आपसे कुछ लेके जाता है हर मूवी के बाद में। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ मंटो ने आपसे क्या लेके गए हैं? आपने बात कर नहीं, मंटो कुछ आपको देते भी हैं, आपसे कुछ लेते भी हैं, तो उन्होंने आपसे क्या लिया? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं ना, वो एक्सचेंज होता है, गिव एंड टेक होता है, वैसा ये होता क्या है। हुआ आपसे? जी, आपसे क्या लिया उन्होंने? मुझसे क्या लिया? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। हैं? मुझे पॉपुलर इमेजिनेशन में आपका चेहरा ले लिया, क्योंकि ये जनरेशन तो आपके चेहरे से मंटो को भी याद रखेगी। वाओ। हाँ. That's a big contribution. Second question, right in the back. हाँ. इसमें चुगताई ने मंटो के बारे में कहा एक बार, वो शायद मंटो को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कि मंटो एक ऐसा शख्स है, अगर आपको दूर से आता दिखाई दे तो उसकी हड्डियां आपको चुभने लगती हैं। राइट? मंटो एक ऐसा शख्स है जो आपको दूर से आता दिखाई दे तो उसकी हड्डियां आपको चुभने लगती हैं। वो कितना पतला है, कितना मोटा है, इसमें ख्याल आता है। तो आपको क्या लगा मंटो का किरदार करते हुए कि आपकी हड्डियां दूसरों को चुभ रही थी जिनको आप दिखाई दे रहे थे? उस इसी वजह से परेशान रहा ज़माना उनसे उस वक्त पे, क्योंकि वो चुभते थे वो कहीं ना कहीं। Okay, Nawaz sir, big fan moment for me talking to you. जो आपका अभी हाल ही में बहुत फेमस कैरेक्टर है गणेश गायतोंडे, और अब है मंटो। जो आप ऑनेस्टी और तैयारी की बात कर रहे थे, तो क्या डिफरेंस था ऑनेस्टी में जो आप गायतोंडे के कैरेक्टर में लाए हैं और मंटो के कैरेक्टर में? क्योंकि ये असली जीते जागते इंसान थे हमारे समाज के, और गायतोंडे एक काल्पनिक कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है। मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्क दोनों हाँ। कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क है? ऑफ कोर्स लाइक तैयारी के जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है, डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है उसके उस तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मंटो के लिए बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे अपने आप में खुद में देखना था कि मैं कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ अपने आप से, तभी मैं कर सकता हूँ इस कैरेक्टर को, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। गायतोंडे के लिए अलग प्रिपरेशन है, वो मैं बाद में बताऊँगा। Okay. Now we're going to do 3 more. This time we will come, Baba, you're regular. One here, and I want 2 students, okay? Young students to ask. One here, one there. Can Nainika take the mic there, right there? That is, or I'll only bring the mic to you. Question is to Dr. Rakshanda Jalil. ये जानते हुए कि पाकिस्तान was created as a Muslim state, और जिस तरह आपने मतलब जिस तरह पोर्ट्रे किया हुआ है मंटो के कैरेक्टर, आपको क्या लगता है why did he opt to go to Pakistan? मेरे ख्याल से इसका कोई आसान जवाब एक नहीं है। वो बहुत बीमार थे, मतलब गरीब भी थे, पैसे की भी ज़रूरत थी, ड्रिंक्स की भी मसला था,
शायद वो चाहते थे कि एक क्लीन स्लेट से ज़िंदगी को शुरू करें। जो एक बोहेमियन बॉम्बे था वो उनको लगने लगा था शायद इतना बोहेमियन नहीं है, उसके इफ़ यू स्क्रैच द सरफेस उसके नीचे बहुत से ऐसी चीज़ें थीं जो हमें उनकी शाम के साथ जो दोस्ती थी और फिर जो उसमें एक दरार आ गई उसके बारे में मालूम है। हमें अंदाज़ा है कि वो उन्हें एहसास होने लगा कि एक कम्युनलिज्म है जो अब तक पेपर्ड था लेकिन उसके क्रैक्स अब नज़र आ रहे हैं, और वो ये फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी एकजुट मालूम देती थी शायद वो उतनी नहीं है। अब कोई एक जवाब नहीं है इसका, उनकी अपनी दो लिखावट है। एक तो एक कहानी है सहाय जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जो शिप पे बैठ के जा रहा है और उसके दोस्त उसको अलविदा कहने जाते हैं। उससे हमें एक क्लू मिलता है कि शायद मंटो की ये रीजंस हो सकते हैं, ये कैफियत हो सकती है। फिर मंटो ने एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच लिखा है महरे दरख्शां, ज़हमते महरे दरख्शां। वो एक ऑटोबायोग्राफिकल सा स्केच है अर्ली डेज का, यानी जब वो शुरू में लाहौर जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत है, उसमें कुछ वो इशारा करते हैं। लेकिन मंटो भी मंटो कोई बहुत क्लियर आंसर नहीं है। अब ये आप पे है, ये इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई इनमें से कोई एक हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन मंटो जैसे बहुत से लोग जो 48 में जा रहे थे उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक वन वे टिकट है, लोग समझते थे कि आते जाते रहेंगे। I don't have the question to anyone in particular. I mean, I'm expecting an answer from Rakshanda or Nawaz. But so in the initial teaser that came out where Manto is addressing a class and he makes a line on the blackboard with a chalk. And when he leaves the room, he says कि मैं अपने ज़मीर से आँखें कैसे मूंदूँ? I'm not correct. And also, I've read one of the works of Manto where he's writing Manto on Manto. So there is a very dual personality where he addresses himself as, which is also reflected in the movie. But how did the character, or as a reader of Manto, how have we understood this is my question. एक तो आप उसकी बात कर रही हैं जो वो चौक से, मैं अगर अपनी आंखें बंद कर भी लूँ तो अपने ज़मीर का क्या करूँ, वही ना। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही मोमेंटम कुछ वो होता है ना कि कॉन्ट्रोडिक्शन, ऑफकोर्स हर इंसान में कॉन्ट्रोडिक्शन, वो भी कॉन्ट्रोडिक्टरी थे। मोमेंट पे क्या आपको आ रहा है दिमाग में आप वो बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक फिलॉसफी या किसी एक चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी चले। मैं कई बार हम लोग कोशिश भी करते नहीं, मेरा ये थॉट और इसी थॉट को पता चला 2 दिन के बाद मेरा एक्सपीरियंस ही बस चेंज हो गया, बदल गया मैं, और मैं कुछ और ही थॉट हो गया। तो मे भी शायद वो मोमेंट के अकॉर्डिंग वो फ्लूइड रहना अलाउड है, लोगों को हाँ, सीखना अलाउड है, फ्लूइड रहना अलाउड है इन आवर थॉट्स प्रोसेस। मैं ऐड टू दिस, आई थिंक मंटो का एक बहुत पसंदीदा लफ्ज़ था फ्रॉड। वो हर एक को फ्रॉड कहते थे और अपने आप को भी फ्रॉड कहते थे। तो उनमें मेरे ख्याल से सिनिसिज्म बहुत था, और वो सिनिसिज्म ऐसी चीज़ थी जिससे वो मतलब रोज़ी टिंटेड व्यू नहीं था उनका दुनिया का। उन्हें अच्छे लोग भी दिखते थे लेकिन बाय एंड लार्ज उनको इस बात में था, उन्होंने बल्कि कहीं कहा है कि मैं काले बोर्ड पे काले पेन से नहीं लिखता, मैं काले बोर्ड पे सफ़ेद चौक से इसलिए लिखता हूँ कि उस काले बोर्ड की कालिक शार्पली नज़र आए। तो मेरे ख्याल से उन्हें उस काले बोर्ड की कालिक में बहुत दिलचस्पी थी। Yeah, the mic is going to go next. Yeah, will you? मेरी ये सवाल नवाज जी से है। नवाज जी, आप एनएलसी के एक ट्रेंड एक्टर हैं और नंदिता दादा जी फिल्म मेकर, बट शी इज नॉट ए ट्रेंड फिल्म मेकर। पर अचानक हमें सुनने में आया कि उनकी फिल्म कान गए बियॉन्ड सर्टन रिगार्ड सेक्शन में, ऑफिशियल सेक्शन। तो एज ए डायरेक्टर आपको नंदिता दास का काम कैसा लगा? मैं समझा नहीं क्या हो। बहुत अच्छा लगा यार, मैं बुरा कैसे बोल दूंगा। उसमें कोई शक है ही नहीं उसमें। तो बहुत रिसर्च वर्क है, उन्होंने 5-6 साल तक रिसर्च की उनके ऊपर। आई थिंक हमारे से ज़्यादा जानती हूँ मंटो के बारे में। तो मैंने तो जब उन्होंने मुझे डिटेल्स बताए मंटो के बारे में तो आई वाज जस्ट शॉक कि माय गॉड कितनी रिसर्च कर रखी है उन्होंने, और हमें एज एन एक्टर हेल्प भी मिली हम लोगों को उनकी उस रिसर्च वर्क से। आपने सिर्फ 1 रुपए लिए हैं इस मूवी के लिए? आपने सिर्फ 1 रुपए लिए हैं इस जी, मूवी मैंने के 1 लिए? रुपया लिया, वो भी दिया नहीं उन्होंने अभी।
रसिका आपने थोड़े ज़्यादा लिए. Nawaz just found out this yesterday and it's not gone ये down फिल्म very में well. हाईएस्ट so- पेड एक्टर हैं. सबसे ज्यादा इन्होंने लिया पैसा. तो हो गया ना पैरिटी बॉलीवुड और हॉलीवुड में अब. Some more, okay. Here, अरे one sec. Look, we can keep on asking questions जब तक आप हैं, हाँ. तो अगर आप थक जाएंगे तो फिर कहना. Then we'll stop the questions. Okay. One here, maybe someone on that side. Now, are there any young students who want to ask question? All the way behind. There's that red kurta in the last row. Yeah. Okay. So wait, last row red kurta. नवाजुद्दीन जी, I'm going to make a comment which is personal, so आप बुरा ना मानना. NSD का फंक्शन हुआ था एल्फिंसन रोड पे जहाँ नाना पाटेकर spoke and then उसके बाद में आप आए थे. So after नाना पाटेकर does a lot of नाटक, bombastic. उसके बाद में आप आए and you are very subdued. हौली हौली बात करते हैं. But when you see your movies, you are an absolutely dynamic actor. तो what I'm saying is ना, ये जो बॉलीवुड का जो पर्सनालिटी होता है वो आप यहाँ नहीं लेके आते हैं. आप अपना चमत्कार स्क्रीन पे दिखाते हैं. So I wanted to talk a bit about that you have not allowed Bollywood का माहौल to affect you. You have worked with incredible actors like Anurag Kashyap. Lunchbox was an amazing film. So how do you manage to maintain, like वो कीचड़ में लोटस है. अब क्या पूछ रहे हैं? लास्ट में मुझे. नहीं तो आप यू आर वेरी आप स्क्रीन पे जो हैं आप इतने शानदार एक्टर हैं. रियल लाइफ में आप वो मतलब अपना वो बॉलीवुड अवतार नहीं लेके घूमते हैं. तो आप हाउ डू यू कीप दीज टू डिफरेंट? आप रियल कैसे रहते हैं इतना? अब वही ना, इसलिए मैं भी शायद इसलिए होता कि लाइक अब इतने कहीं तो अपने आप में रहना चाहिए ना. अब वहाँ पे तो कुछ कई दूसरी जगह पे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जितना अपनी लाइफ में जितना सिंपल, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटी वाले कैरेक्टर करने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट कुछ वक्त आपकी अपने लिए होना चाहिए जहाँ आप खुद अपने आप में हों, तो तभी कर सकते हैं. अदरवाइज मैं वहाँ पे भी और ये भी पता चला गणेश गायतोंडे बन के घूम रहा हूँ मैं. My question is for Rasika ma'am. My question is for Rasika ma'am. You and Nandita ma'am were at Cannes Film Festival this year, and you were part of the protest of the group of 83 women who climbed up the 71 stairs. If you're talking about freedom of speech and expression, how long do you feel that it would take Indian film industry, especially Bollywood, for expressing women in all the shapes, sizes they come in? Basically, we usually see women being portrayed in this, a stereotypical figure with stereotypical likes. You don't see women with tattoos. You don't see women with short hair. You don't see women from LGBTQ community being portrayed. Their stories being told is very rare. So how long do you feel it would take for Bollywood to reach a stage where they'll tell the stories of all these unheard women? A very, very long time, I think. But the idea is to have roles written for women which are more nuanced and not stereotypical. Like doing a woman with short hair and tattoos, also another kind of stereotype. I mean, I just want to believe in what this person is going through, and not the person should not be there just to be a part of a song or to titillate the audience in some way, or just as a prop so that the main character can sort of take the story further, and this is just somebody that they talk to once in a while. I mean, I want stories written about, I want characters written about women in which they're nuanced well, they're written well, and there is a complexity to them. There is a long way to go for that, because also writing in our country, there's a lot to desire still in terms of writing for cinema. The web is changing a lot, and
also generally I think people are now paying more attention to writers in general and understanding that they need writers. I don't think earlier there was even a concept कि हमें अच्छे writer की ज़रूरत है, पहले तो अच्छा ये director हो तुम लिख भी लो. I mean, finally we are being able to recognize that. So yeah, I'm hopeful that things are changing, but how long that will take, I don't know. And also I think as cinema and society, they're a reflection of each other, and we have to as a society sort of generally have more respect for women so that we are able to have that space for them in cinema as well. Hello. Hello. I just wanted to know कि नवाज सर, क्या आपने उनका सारा साहित्य कंप्लीट करा, मतलब before you entered the cinema, like क्या कंप्लीट किया क्या? उनका सारा साहित्य, like मंटो का सारा साहित्य पढ़ा? सारा नहीं पढ़ा मैंने. अच्छा अच्छा. And one thing सारा more. पढ़ना बहुत मुश्किल है. हाँ. And one thing more, sir. Are you still connected to theatre, or you have just moved to cinema? कि आप थिएटर से अभी भी कनेक्टेड हैं, या you have moved to cinema? नहीं, थिएटर में मैं 20 साल पहले किया था लास्ट प्ले मैंने. ओके. अब मैं अभी उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, अब इतना टाइम कहाँ मिल पाता है, you know. ओके. थैंक यू सर. Okay. Just two more questions, but remember, so sweet. We'll take one from here, and then I'll just come there for that. But now remember, after the questions get over, this is very, very important. Everyone, don't stand up. We have one door here and one door here. So be calm, elegant, beautiful, cool. Everyone be seated in your seats. We have enough snacks for everybody. So we're going to lovingly, elegantly, slowly go out from this door. All those who are behind, slowly go out from that door. Everyone doesn't have to come here. We have 3 doors. I'm just saying this because when we end, I don't want everyone to rush. Because you all have to not fall down. You have to be proper. Because we all have to go and see Manto on 21st. Na? If we fall down and we hurt ourselves, we won't be able to go to the cinema to see it, okay? You got it? So when this gets over, we're all going to quietly, lovingly stay in our seats, slowly, slowly move out. ठीक है? Okay. One here, and then I'm going to come there for one. Nawaz sir, this is for you. Since Manto, you said that to do the role of Manto, you had to be honest with yourself. So can you tell us honestly which role you regretted doing in your career? Which role? नहीं, रिग्रेट तो कोई से भी, मैं क्यों रिग्रेट होऊंगा? जो भी करूंगा अपने कॉन्शियस, अपना सोच समझ के करता हूँ, जो भी रोल करता हूँ. रिग्रेट तो किसी भी रोल को लेके नहीं हो सकता, चाहे अच्छा हो या बुरा, व्हाटएवर, कैसा भी रिएक्शन आए, बट मैं तो खुश हूँ, चाहे वो एक छोटा सा भी रोल किया तो उससे भी खुश हूँ. Great. Rasika, any role that you regret? Actually, you should be doing more. I'm Where not are Manto. you? I'm not compelled to speak the truth. मेरा क्वेश्चन Just नवाज you सर, can stay silent. मेरा क्वेश्चन नवाज सर से है, क्योंकि उन्होंने इतने बेहतरीन कैरेक्टर्स अब तक इस मुआशरे में प्ले किए हैं. अभी वो बाला साहब ठाकरे का भी बायोग्राफी करने वाले हैं. मेरा क्वेश्चन था कि आप किस कैरेक्टर को प्ले करना चाहोगे इन टाइम ऑफ 70s? कोई हॉलीवुड एक्टर, फॉर एग्जांपल मैं अगर गॉडफादर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माइकल कॉर्लियन का जो कैरेक्टर था वो आप बेहतर प्ले कर सकते. तो ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो आप प्ले करना चाहते हो? लाइक माइकल कॉर्लियन इज क्वाइट सिमिलर विद फैजल खान ऑफ गैंग्स ऑफ वसेपुर. सो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर कोई बंदा इस कैरेक्टर को प्ले कर सकता अल पचिनो के सिवा तो नवाज सर हो सकते थे. तो ऐसा कोई कैरेक्टर हो 70s 60s के टाइम में, क्योंकि वो सिनेमा बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है अमेरिकन सिनेमास को देख के. हम भी उनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, आज भी हम फिल्में वैसी बनाते हैं. तो कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसके अंडर में और कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आप प्ले करना चाहते थे फिल्म में? अगर मैं ये सोचूंगा ना, मैं कोई कैरेक्टर करना चाहता हूँ, लाइक जैसे स्कारफेस का कैरेक्टर है, अल पचिनो का कैरेक्टर. जब बीच में जब हम लोग थिएटर करते थे तो फेजेस आते थे 2-2 3-3 महीने के. तो एक फेज था कि जिसमें हम लोग लाइक बिल्कुल अल पचिनो बन के घूमते थे. तो उसमें क्या होता था, रोल कुछ दूसरा मिल जाता था, उसमें भी हम उसको चिपका देते थे, यू नो. हमारे टीचर ने हमें बोला कि यार ये सब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, रोल तो कुछ और है, रोल तो विदूषक का है. संस्कृत प्ले कर रहे थे हम लोग, रोल विदूषक का है और तुम उसमें अल पचिनो घुसेड़ रहे हो, क्या मतलब है ये? तो बहुत सुना. तब से मैं किसी रोल को आइडलाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, उसके ग्लिम्सेस आने लगते हैं आपके दूसरी परफॉर्मेंस में.
With that, all our questions we will answer now over snacks. Don't worry, we're all going to be there over snacks. Don't worry. So now we are going to continue the conversation over snacks. But before that, we're going to do something which you will all love. Since you all have phones, I heard so many of them ringing during the conversation. Henna, take those phones out. We're going to ask our lovely panel to stand so that we can take a lovely photograph. You can take a photograph of them, social media pe. Please put. Please tag, please say, I love seeing this panel now. Go see the movie on 21st. Tag Viacom and us. So if anyone wants to take a picture, this is a great time. And you all look little loving, na? Look little happy. 377 has gone. We're in a good India. So thank you all. I said no rushing. Calm down. Oh, for photos you can come. Still come slowly. So and thank you, Rakshanda. Thank you. Thank you, Rasika, Nawaz. Thank you, Nazia. Thank you all for being such an incredible panel. All the best for Manto. And thank you. If anyone wants their book signed by Nazia and Rakshanda, remember, we're going to have snacks with all of them now. All those who came here, take your photos. And now, remember everyone, we're going to elegantly and lovingly, slowly go and have snacks. Okay? Yeah, we want to take, stand back. We want a picture with all of you. Please come in our selfie. Awesome. Hashtag selfie with Nawaz and Rasika. If you want to appear in the picture, you should be little behind.